Hello 11th grade. Today we are going to start our chapter 8, that is data handling. In this chapter we are going to read about the introduction, data types, mutable and immutable types, operators, expression, introduction to Python standard library modules and debugging. Okay. सबसे पहले क्या data handling क्या है? Most of the computer programming language support data types, variables, operator and expression like fundamentals. Means these are the fundamentals things that we can write even the most elementary programs. So in this chapter we introduce some such fundamentals like these data types, variables, operator and expression that we are going to use in the Python. And Python provides a predefined set of data types for handling the data it uses. Data can be stored in any of these types. So in this chapter we are going to discuss about the various types of data that you can store in Python. A program also needs a means to identify stored data. Means हम जो डेटा को स्टोर करेंगे वो किस टाइप का है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, लाइक दिस. These all are the different types of data. So data types, Python provides a predefined set of data types for handling the data it uses. Data can be of many types like character, integer, real, string, etc. Anything enclosed in quotes represent string data in Python. Like I write in the quotes, that is the string. Numbers without fractions represent integer data like 2, 3, 4. These are the integer data. Number with fraction represent real data like 2.5, 3.968. Like these are the floating type of data and real data. And true false represent boolean data. Okay, these all are the types of data that are handled in the programming language. Okay, so variables can hold values of different data types. Python is a dynamically typed language, hence we need not define the type of variable while declaring. इसका मीन क्या है कि जो हम अगर आपने C या C++ लैंग्वेज की है तो उसमें हमें डेटा को जो वेरिएबल हम लेते थे उसको डिफाइन करना पड़ता था कि A इंटीजर टाइप का है या फिर A फ्लोट टाइप का है या स्ट्रिंग टाइप का है, लाइक दिस. बट इन द पाइथन वी नीड नॉट डिफाइन द टाइप ऑफ वेरिएबल वाइल डिक्लेयरिंग. सिंपल हम वहाँ पर वैल्यू को स्टोर करेंगे. ओके, लाइक दिस. यहाँ पर हमने नहीं दिया, जो वैल्यू उसके पास गई है उसका मीन उसने जो पाइथन है इंटरनली ही फाइंड आउट किया कि ये किस टाइप का डेटा है. जैसे 10 है, दैट इज़ इंटीजर. यहाँ मैंने नेम राइट किया पूजा, दैट मीन्स इट इज़ अ स्ट्रिंग. द इंटरप्रेटर इम्प्लिसिटी बाइंड्स द वैल्यू इट्स टाइप. तो इंटरप्रेटर क्या करता है, जिस टाइप की उसकी वैल्यू दे दी जाए वो उसी के अकॉर्डिंग उसको जो वेरिएबल होता है उसको बाइंड कर देता है. Python has 5 built-in data types, that is numbers, string, list, tuple, dictionary. Some are we have discussed already in chapter 7. Some things are that are coming in this chapter that we already discussed in that chapter, in the previous chapter, that is chapter 7 Python fundamental. You have read also about the numbers, string, and list, tuple and dictionary are the new things for that. So firstly, what are the number? नंबर से ही आपको पता चल रहा है कि इट इज़ यूज टू द न्यूमेरिक वैल्यू. ये 3 टाइप्स के हैं, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर. इंटीजर यू ऑलरेडी रीड एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ऑल्सो रीड. इंटीजर्स क्या होते हैं, जो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स विद नो डेसिमल पॉइंट्स की जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होंगी, इंटीजर. और उसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, इंट. अगर हमने उसकी टाइप देखनी है तो वो कंप्लीट इंटीजर नहीं राइट करेगा. जो पाइथन है वो किस टाइप में राइट करेगा, इंट, INT, इंट. तो सी, इंटीजर्स और इंट आर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर विद नो डेसिमल पॉइंट. इंटीजर इन पाइथन 3 आर अनलिमिटेड साइज. उसका अनलिमिटेड साइज होता है. तो इंटीजर्स जो हैं आपके पास साइंड भी हो सकते हैं, मीन्स +100, -100, लाइक दिस. अगर हमने यहाँ पर कोई भी साइन नहीं दिया तो इट कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव.
like a is equal to 100, b is equal to minus 100 and c is equal to 1 multiply 20 एंड प्रिंट करना a क्या वैल्यू आएगी 100, प्रिंट b माइनस 100, प्रिंट c 20. ओके, दीज आर द इंटीजर्स. नेक्स्ट इज टाइप कन्वर्जन ऑफ इंटीजर. मीन्स अगर कोई डेटा टाइप जो भी डेटा हमने उसमें फिल किया हुआ है उसको वो किस टाइप में कन्वर्ट कर दे, इंटीजर टाइप में, चाहे वो फ्लोट से इंटीजर करना है या स्ट्रिंग से इंटीजर करना है, लाइक दिस. ओके, तो फॉर एग्जांपल ए में हमने वैल्यू क्या दी 101 और ये किस में है, इन्वर्टेड कोमा में, तो दैट मीन्स वो किस वैल्यू की है, स्ट्रिंग. मैंने अब यहाँ पर टाइप कन्वर्ट किया कि बी में कौन सी वैल्यू आ जाए, इंटीजर ए. ये क्या करेगा, जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में. एंड सी इज इक्वल टू इंट 122.4 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, वो किसको कन्वर्ट करेगा, इंट में. अब मैंने यहाँ पर दिया प्रिंट बी एंड प्रिंट सी. प्रिंट बी क्या आएगा, इंट ए इंटीजर टाइप में 101 एंड प्रिंट सी 122. क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लेता तो ये पॉइंट के जो बाद वाले वैल्यूज़ होंगे उसको डिस्कार्ड कर देगा और जो स्टार्टिंग का रियल पॉइंट है जिसको हम इंटीजर कहते हैं वो उसको राइट करेगा. ओके, नेक्स्ट है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स. वो नंबर्स जिसमें हमारे डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, जैसे 101.2 माइनस 101.4. These all are the floating point numbers and we have already discussed in the previous chapter also integers and floating point numbers. Then how we convert floating point numbers, वही सिंपल आपको आगे फ्लोट लगाना है और वैल्यू को पास करना है. जैसे ए की वैल्यू पर आपने देखी क्या है 301.4 और किस में है, इन्वर्टेड कॉमास में या सिंगल कोट में है. ठीक है, तो दैट मीन्स इट इज़ अ स्ट्रिंग टाइप वैल्यू. ए क्या है, स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है, हमने उसको किस में कन्वर्ट किया, फ्लोट में. सो वी आर यूज द फ्लोट फंक्शन. फ्लोट फंक्शन में हम क्या करेंगे, वैल्यू पास करेंगे, कौन सी, ए क्या है स्ट्रिंग टाइप की, वो किस में कन्वर्ट करेगा, फ्लोट में. तो आंसर क्या आएगा 301.4. अब फ्लोट है 121. 121 इज अ इंटीजर टाइप. इंटीजर को हमने किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्लोट में. तो वो देखो पीछे कोई भी डेसिमल नहीं है तो वो डेसिमल कंसीडर करके 0 राइट कर देगा. ओके, दिस इज द टाइप कन्वर्जन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स. नेक्स्ट आप है कॉम्प्लेक्स नंबर्स. आपने बेटा मैथ्स में पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, आर द कम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. ओके, कम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट किस फॉर्म में होते हैं, एक्स प्लस वाई आई, वेयर एक्स इज द रियल एंड वाई इज द इमेजिनरी पार्ट एंड आई इज इक्वल टू -1 और आई की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ -1. लाइक z इज इक्वल टू 4 + 3i. हेयर 4 इज द रियल कंपोनेंट एंड 3 इज द इमेजिनरी कंपोनेंट एंड i क्या होगा यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ -1. These types of expressions or numbers are considered as the complex number. और यहाँ पर बेटा i किस लिए यूज़ होता है कि i हम इसलिए यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट द करंट. इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यूज़ किया जाता है और वहाँ पर किस लिए रिप्रेजेंट करते हैं ये नंबर, जो i है स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, दैट इज़ रिप्रेजेंट टू करंट. जो हम करंट पास करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उसको हम कंसिडर करते हैं आई एंड दैट इज वी हैव स्टडीड अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स. बट इन पाइथन वी यूज सिंबल j इन प्लेस ऑफ i फॉर द स्क्वायर रूट ऑफ -1. हम अगर पाइथन में कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ कर रहे हैं तो हमें i की जगह क्या राइट करना पड़ेगा, j. The real and imaginary part of a complex number z can be retrieved through the read-only attributes z dot real and z dot imaginary. वो क्या कह रहा है, अगर z में हमारे पास कोई वैल्यू है ओके और हमने उसके रिट्राइव करने पार्ट, रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, देन वी यूज़ दीज 2 पॉइंट्स. फॉर एग्जाम्पल z में आपके पास क्या है 1 + 2.56j. okay, this is a complex number and we use here j because Python take j in place of i. तो z डॉट रियल पार्ट ये है 1 तो वो किसको देगा 1.0. ओके, z डॉट इमेजिनरी 2.56.
अगर हमें कोई भी नंबर रिट्राइव करना है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, जिस वैल्यू का है, सपोज यहाँ पर अगर हम a इज इक्वल टू 2.5.6j भी राइट कर दे, तो देन हम a डॉट रियल दैट इज इक्वल टू 2.0, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो पाइथन है, वो रियल पार्ट को हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट करता है. दैट्स वाई इट टेक्स 2.0. एंड इफ वी राइट a डॉट imag दैट इज इमेजिनरी पार्ट, कौन सा एट्रीब्यूट आएगा? 5.6. The real and imaginary part of complex numbers are represent internally as the float values. कौन सी में लेके चलता है? फ्लॉट वैल्यू में. अगर यहाँ 1+2j भी होता तो वो किस में देता? 1.0 एंड 2.0, क्योंकि ये इंटरनली कौन सी वैल्यू हमें देता है? फ्लॉट वैल्यूज. दीज ऑल आर द नंबर्स. नेक्स्ट आपके पास आता है स्ट्रिंग्स. स्ट्रिंग्स क्या है? क्या अभी हमने लास्ट वाले जो चैप्टर था क्या पढ़ा था अबाउट द स्ट्रिंग्स? जो हम कोड्स, सिंगल कोड, डबल कोड और ट्रिपल कोड्स में राइट करते हैं वर्ड्स, वो क्या हमारे होंगे? हमारे स्ट्रिंग्स होंगी. चाहे वो करेक्टर हो या फिर हम उसको कुछ भी राइट कर सकते हैं. जैसे p राइट किया, दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग. कोई नेम भी राइट कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग. तो इन पाइथन each character stored in a string is a unicode character. unicode character means जो यूनिकोड हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि एवरी करेक्टर का अपना कोई ना कोई कोड होता है. जैसे कैपिटल ए है वो 65 है, स्मॉल ए 97. ओके, दीज आर द यूनिकोड्स. तो वो क्या कह रहा है कि ईच करेक्टर स्टोर्ड इन अ स्ट्रिंग इज अ यूनिकोड करेक्टर. स्ट्रिंग इन पाइथन आर स्टोर्ड एज इंडिविजुअल करेक्टर इन कॉन्टीन्यूअस लोकेशन. वो कह रहे हैं जब हम मेमोरी में स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं तो वो जो भी इंडिविजुअल करेक्टर है उसमें एक बिट में वो स्टोर होगा. देखो हमने पाइथन वर्ड लिया. ओके, मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ कि पाइथन कोई स्ट्रिंग वर्ड है, उसको मैंने मेमोरी में लोकेट करना है. आपके पास इस टाइप में मेमोरी में लोकेट होगा बेटा. कॉन्टीन्यूस में एक बिट एक वर्ड को लेके चलेगी. PYTHON. ओके, एंड दिस इज द इंडेक्स. ओके, इंडेक्स, इसको हम कहेंगे इंडेक्सिंग. 0 1 2 3 4 5. ओके, दिस इज द फॉरवर्ड इंडेक्सिंग. अगर मैं इसको लेके चलती हूँ लाइक दिस कि PYTHON, दिस इज 0 1 2 3 4 5. दिस इज फॉरवर्ड इंडेक्सिंग. और अगर हम पीछे से राइट करेंगे, बैकवर्ड होगी. ये स्टार्ट करेंगे -1 से. -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6. ओके, तो इंडिविजुअल करेक्टर वो कॉन्टीन्यूअस लोकेशन में स्टोर करता है विद 2-वे इंडेक्स फॉर ईच लोकेशन. जैसे देखो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है, ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग है. सेकंड आपका रहता है कि अगर मैंने एक करेक्टर को रिट्राइव करना है, किसी भी एक करेक्टर को, मीन्स मुझे थर्ड करेक्टर देखना है, तो मैं उसका लिखूंगी नेम, क्योंकि मैंने नेम में दिया पाइथन. ओके, और मुझे क्या करना है, इसका थर्ड करेक्टर लेके चलना है. तो 1 0 1 2 3 नेम और इंडेक्स में दूंगी थर्ड करेक्टर. तो कौन सा होगा थर्ड बेटा? ये क्या दे देगा हमें? H. लाइक दिस. देखो नेम 0 P, नेम 1 Y, नेम 2 T, नेम 3 H, नेम 4 O, नेम 5 N. और अगर हम बैकवर्ड में लेके चलेंगे, देखो नेम -6, नेम -5, नेम -4, लाइक दिस. हम हर करेक्टर को रिट्रीव कर सकते हैं. दस वी कैन एक्सेस एनी करेक्टर एज स्ट्रिंग. नेम लिखो, देन उसका इंडेक्स. जैसे नेम है, नेम में मैंने राइट किया हेलो. नेम 0 पे कौन सा है? H, तो वो किसको लेके चलेगा? H को लेके चलेगा. ओके, तो हम इस टाइप से रिट्राइव करते हैं. वी कैन नॉट चेंज द इंडिविजुअल लेटर ऑफ अ स्ट्रिंग इन प्लेस बाय असाइनमेंट बिकॉज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल एंड हैंस आइटम असाइंड इट इज़ नॉट स्पॉटेड. वो क्या कह रहा है कि अगर हमने
जैसे एक स्ट्रिंग दी है उसके किसी भी एक इंडिविजुअल करेक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रिंग कौन सी कैटेगरी में आता है, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मीन्स हम उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, हम उसे चेंज नहीं कर सके। ये आगे आगे आपके पास म्यूटेबल और इम्यूटेबल का पूरा कंसेप्ट आएगा, देन आपको क्लियर हो जाएगा। लाइक दिस कि नेम हमारे पास हेलो है, नेम ज़ीरो मीन्स एच की जगह वो क्या कह रहा है, पी हमने चेंज करना है, एच के जगह हमने पी रिप्लेस करना है, बट पाइथन गिव्स द एरर, ये उसे स्पॉट नहीं करता क्योंकि स्ट्रिंग किस कैटेगरी में आता है, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मीन्स डू नॉट चेंज। देन हमारे पास नेक्स्ट जो आती है वो है लिस्ट। ओके, लिस्ट डेटा टाइप। अ लिस्ट इन पाइथन रिप्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट। कैसे लिस्ट राइट करते हैं, ए इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स दीज ब्रैकेट, और हमें कोई भी वैल्यूज राइट करनी है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, लिस्ट बनेगी। ओके, हम चाहे उसमें स्ट्रिंग लिख सकते हैं, फ्लोटिंग नंबर लिख सकते हैं, इंटीजर नंबर लिख सकते हैं और मिक्स नंबर लिख सकते हैं। लाइक ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, दीज ऑल आर द इंटीजर टाइप। बी ए ई आई ओ यू, दीज ऑल आर द स्ट्रिंग टाइप। सी नेहा, स्ट्रिंग 102, इंटीजर 79.5, दिस इज फ्लोट। मीन्स हम लिस्ट में कोई भी डेटा टाइप को मेंशन कर सकते हैं। लिस्ट आर म्यूटेबल मीन्स लिस्ट में हम चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं उसकी वैल्यू को। सपोज A0 10 है, A2 30 है, तो देन हम कैसे करेंगे बेटा चेंज, लाइक दिस। मेरे पास A है 1 2 3 4 5, मैं क्या करूँगी कि A2 की जगह मीन्स ये क्या है 0 1, A1 यानी कि 2 की जगह मैं मुझे क्या राइट करना है 6। तो जब भी हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ए क्या आ जाएगी, A 1 6 3 4 5। ओके, सो वी कैन चेंज इन द लिस्ट। Tuples. Tuples are represented as a list of comma value of any data type with the parentheses. अगर हम parentheses में लिखेंगे तो वो किस में कंसिडर्ड होंगे, टपल्स, और अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे वो किस में कंसिडर्ड होंगे, लिस्ट में। बट टपल्स आर इम्यूटेबल्स मीन्स वी कांट चेंज और मॉडिफाइड। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास डिक्शनरी डेटा टाइप। डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर विद इन दीज ब्रैकेट, करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स में राइट करते हैं, उसमें उस की वैल्यू भी राइट की जाती है। मीन्स इन डिक्शनरी नो टू कीज कैन बी सेम, दैट इज यूनिक की वी कैन से दैट। जैसे हमने वॉवल्स राइट किए A1 E2 मीन्स A की है और 1 उसकी वैल्यू है। ओके, E उसकी की है, वैल्यू है, हमने इस टाइप में राइट करेंगे। वोवल्स का ए राइट मीन्स उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो डिक्शनरी में हम क्या करते हैं, अनऑर्डर्ड सेट होता है, उसको भी हम कोमा से सेपरेट करते हैं, तो और क्या देते हैं की, देन सेमीकोलन, देन वैल्यूज विद एन एनक्लोज्ड करली ब्रैकेट्स। नेक्स्ट आता है आपके पास सेट्स। सेट इज ऑल्सो अ डेटा टाइप। दिस इज similar to list that can store multiple values same in the mathematical set. मैथमेटिकल सेट में जैसे हम मल्टीपल वैल्यूज राइट करते हैं, इन द सेम वे वी कैन राइट इन द पाइथन, बट दिस sets are little different from the list. How? Sets are created by specifying comma separated value enclosed in the curly bracket. ये किस में राइट किए जाएंगे, करली ब्रैकेट में, और लिस्ट किस में थी, स्क्वायर ब्रैकेट में। सेट्स एलिमेंट्स आर अनऑर्डर्ड एंड अनहिंडर्ड मीन्स अनऑर्डर्ड में हम उसको राइट कर सकते हैं। सेट डू नॉट अलॉट डुप्लीकेट एंट्रीज अनलाइक लिस्ट, इसमें डुप्लीकेट एंट्रीज मीन्स अगर मैंने 4 2 टाइम्स राइट कर दिया तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेट कैन नॉट कंटेन म्यूटेबल एलिमेंट, और ये क्या है, म्यूटेबल नहीं है। ओके, जैसे मैंने लिया माई सेट 1 2 3 4, प्रिंट कर दिया माई सेट को, तो वो 1 2 3 4 प्रिंट कर दिया। देन माई सेट में मैंने एक और वेरिएबल लिया माई सेट 1, उसमें मैंने 4 को 2 टाइम्स राइट कर दिया, बट जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो वो
जो डबल एंट्री है उसको नहीं लेके चलता। सेट्स डू नॉट अलाउ म्यूटेबल एलिमेंट लाइक लिस्ट, जैसे हम लिस्ट में चेंज कर सकते हैं, सेट में हम चेंज नहीं कर सकते। इट गिव एन एरर व्हेन वी ट्राई टू ऐड अ लिस्ट एज अ एलिमेंट, अगर हम इसमें कुछ भी ऐड करते हैं एज अ लिस्ट एलिमेंट तो इट गिव्स द एरर, बट इट गिव नो एरर व्हेन वी गिव ए टपल एज एन एलिमेंट। कैसे बेटा, जो सेट 1 है 1 2, इसमें मैंने राइट कर दिया, लिस्ट है ये 3 4, ठीक है। सेट में हम क्या कर नहीं कर सकते, टप्पल्स को सॉरी लिस्ट को इंक्लूड नहीं कर सकते, बट टप्पल्स को हम राइट कर सकते हैं, क्योंकि ना तो हम टप्पल्स चेंज कर सकते हैं, लिस्ट में हम फिर भी चेंज कर सकते हैं। टप्पल्स क्या हमारे इम्यूटेबल, सो सॉरी टप्पल्स क्या है इम्यूटेबल, तो सेट्स कैन नॉट कंटेन अ म्यूटेबल एलिमेंट, तो म्यूटेबल लिस्ट हो गई तो सेट्स में हम उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। ओके देखो, आई थिंक यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है, जो सेट्स हैं, ठीक है, सेट्स क्या है इम्यूटेबल, ओके, लिस्ट क्या है हमारे पास म्यूटेबल, और जो हमारे पास टप्पल हैं वो क्या है इम्यूटेबल। ओके, सेट्स इम्यूटेबल है तो दैट्स वाई इट कंटेन टप्पल इन द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, बट लिस्ट को हम उसमें सेट्स में इंक्लूड नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स। क्या है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स? सिंपली कि चेंजेबल और मॉडिफाइएबल एंड नॉन मॉडिफाइएबल, कि हम किसे चेंज कर सकते हैं और किसे नॉट चेंज कर सकते हैं। म्यूटेबल इज चेंजेबल, इम्यूटेबल इज नॉन चेंजेबल। गॉट इट। अब इम्यूटेबल टाइप्स कौन कौन सी है? द इम्यूटेबल टाइप आर दोज दैट कैन नेवर चेंज देयर वैल्यू इन प्लेस। इम्यूटेबल टाइप्स क्या हैं? जो उनकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, उनको हम क्या कहेंगे? इम्यूटेबल टाइप्स। ओके बेटा, यहाँ क्या है? वैल्यू इन प्लेस, दैट कैन नेवर चेंज देयर वैल्यू इन प्लेस। प्लेस हम किस में लेके चलेंगे? प्लेस क्या है? उसका जो भी क्या कहते हैं मेमोरी लोकेशन है, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। अब हमारे पास आगे आपको क्लियर हो जाएगा कि म्यूटेबल क्या है, दैट कैन नेवर चेंज देयर वैल्यू इन प्लेस। कौन कौन से इम्यूटेबल्स हैं? इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, बुलियन, स्ट्रिंग एंड टप्पल्स। म्यूटेबल्स कौन से हमारे पास? दोज वैल्यू कैन चेंज इन प्लेस लाइक लिस्ट, डिक्शनरी, सेट्स। ओके, अब देखो मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। म्यूटेबल में इंटीजर्स हैं जैसे, ओके, हमने लिया कि p इज इक्वल टू 5, q इज इक्वल टू p एंड r इज इक्वल टू 5। ओके, ये है आपके पास p इज इक्वल टू 5, q इज इक्वल टू p एंड r इज इक्वल टू 5। जब हम इसका आउटपुट लेंगे, प्रिंट करेंगे, तो वो ये टाइप देगा। ओके, नेक्स्ट मैं फिर लेती हूँ p इज इक्वल टू 10, r इज इक्वल टू 7 एंड q इज इक्वल टू r। अब ये वैल्यू क्या आ गई? 10, 7 और r। ओके, तो मीन्स क्या है कि ये हमारे चेंज हो गया। ओके, तो बट इन द इंटीजर्स इट इज़ नॉट चेंजेबल। हाउ? हम क्या लेके चलेंगे यहाँ पर? उसकी मेमोरी लोकेशन लेके चलेंगे। मेमोरी लोकेशन में क्या होगा कि जो उसकी वैल्यू है, लाइक दिस इज योर मेमोरी, हमने मेमोरी लिया, मेमोरी में क्या है? 5 था, p q r। ओके, बट हमने नेक्स्ट टाइम उसकी वैल्यूज़ को क्या दिया? 10 एंड देन 7 एंड 7। ओके, p q और r की वैल्यू सेम है। ओके, यहाँ पर हमारा आता है मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन की बात करें तो हमारे जो p q r है उसकी सिर्फ मेमोरी लोकेशन सेम है, बट वैल्यूज़ चेंज हो गई। नेक्स्ट p की वैल्यू जैसे हमने चेंज की 10, तो उसने उसकी मेमोरी एड्रेस जो है वो चेंज कर दिया। ओके, दीज आर द इम्यूटेबल टाइप। If we find out the memory address to which variable is stored, so then we can use the function id function. Okay, if we apply id function, it will returns the memory address of the any variable. मैंने अभी बताया जैसे p q r में वैल्यू तो सेम है, बट वेरिएबल्स
हम उसमें सेम लिए, ठीक है। जैसे ही p की वैल्यू चेंज हुई 10 तो वो हमारा क्या कर देगा, न्यू मेमोरी एड्रेस में चला जाएगा। और अगर हमें किसी की भी मेमोरी एड्रेस को फाइंड आउट करना है तो देन वी यूज़ द id ऑफ p, ओके, id ऑफ q, id ऑफ r, लाइक दिस। दीज आर द इम्यूटेबल, मीन्स जहाँ पर आपकी सिर्फ मेमोरीज चेंज होती हैं, ओके, मेमोरीज चेंज होंगी देन वो क्या होंगे, इम्यूटेबल। और म्यूटेबल में भी हमारी सिर्फ और सिर्फ हम मेमोरी एड्रेस लेके चलते हैं, मीन्स जहाँ पर आपकी सेम मेमोरी एड्रेसेस होंगी। न्यू वैल्यूज कैन बी स्टोर्ड एज एंड व्हेन यू वांट। दीज टाइप दैट डू नॉट सपोर्ट दिस प्रॉपर्टी आर इम्यूटेबल्स टाइप। मीन्स जैसे हमने लिस्ट लेके चले, लिस्ट में 1 2 3, ओके, मैं इसकी वैल्यू जो 2 है इसको चेंज कर सकती हूँ क्योंकि ये मेमोरी लोकेशन में सेव हो गई, 0 1 2 डिफरेंट डिफरेंट मेमोरीज में है, सो दैट वी कैन चेंज। बट इंटीजर जैसे हमने लिया था, इंटीजर में हमने जैसे किया था कि p q r की सेम वैल्यू है 5, जैसे p की वैल्यू चेंज हुई 10, ओके, तो उसने न्यू मेमोरी लोकेशन ले लिया। q और r का सेम मेमोरी लोकेशन लेगा क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है, 7। दीज आर द कंसेप्ट ऑफ म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप। Rest we will do in the next lecture. Thank you and very much.